of Jesus. Breakthrough in the name of Jesus. I will move upward and forward in the name of Jesus. मैं आगे की तरफ और ऊपर की तरफ बढ़ता जाऊंगा In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord। Please be seated in the house of God. और आप सब खुदा के घर में बैठ जाइए I welcome you all in the mighty name of Jesus. और प्रभु के घर में आप सबका स्वागत करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And tell your friend you are in the safe place. और आप अपने पड़ोसी से कहे कि आप सही जगह पे और सुरक्षित जगह पे हो। Hallelujah. I told you, look at your neighbor. Hallelujah. And say you are in the safe place. And the Sunday school children can follow the teacher. आप सुरक्षित जगह पे हो। Amen. आमेन। Not because we are in M4. इसलिए नहीं क्योंकि हम M4 पे बैठे हुए हैं, We are inside the Holy of Holies. क्योंकि हम पवित्र और अति पवित्र स्थान में हैं। Amen. Amen. We enter the Holy of Holy through the blood of Jesus. हम पवित्र और अति पवित्र स्थान में हैं क्योंकि यीशु मसीह के वजह से। Amen. The Bible says the Lord has raised us together with Jesus. और परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के साथ में उठाया है And he has made us sit together with him in the heavenly और places. उसने हमें उसके यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया So भी है। God lives in the Holy of Holy. और परमेश्वर है वो अति पवित्र पवित्र स्थान में वो रहता है। So today we enter the Holy of Holy through the blood of Jesus. और आज हम पवित्र और अति पवित्र स्थान में जा सकते हैं उसके लहू के द्वारा। Sometimes you may not feel it that you are in the Holy of Holy. बहुत बार हमें महसूस नहीं होता है कि मैं नहीं, आपको कभी कभी महसूस नहीं होता है कि आप Holy of Holy में है. That doesn't matter. और वो उसका कोई बात नहीं अगर आपको फील नहीं होता है कि मैं पवित्र अति पवित्र Because स्थान we में हूँ। are not, our faith is not based on our feelings. क्योंकि हमारा जो ईमान है, हमारा विश्वास हमारे इमोशंस के ऊपर, हमारे फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं है। Our faith is based upon what Christ has accomplished on that cross. और हमारा ईमान और हमारा विश्वास उस पर है जो यीशु मसीह ने जो क्रूस पर काम किया, उस खत्म किए हुए काम पर है। Our faith is upon the good news that we received through Jesus Christ. और हमारा ईमान, हमारा विश्वास उस खुशखबरी पर है जो यीशु मसीह के जरिए हमें मिली है। So let us turn our Bible, let we hear that good news and encourage our faith. और आइए हम वो खुशखबरी को सुनेंगे और अपने ईमान को और मजबूत करेंगे। The Romans chapter 5 verse number 17 and 19 we are going to meditate today. और रोमियो की किताब 5, 19 और 19 17 and 19. Two words we are going to meditate. First we are going to read verse number 17. और 17 को हम पढ़ेंगे। रोमियो 5:17। It is written, by the trespass of one man, death reigned through that one man. How much more will those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man called Jesus Christ? और क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराधों के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वो एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। In this scripture we can see two parts. और हम यहाँ पर दो हिस्से को देख सकते हैं। One is from the Adam. और एक है आदम के जरिए। Through Adam sin came to this world. और हम देखते आदम के जरिए पाप और गुनाह इस दुनिया में आए। Even though we are not sinned, but sin was ruling on us. और हम देखते हमने गुनाह नहीं किया, फिर भी गुनाह हमारे ऊपर हुक्म कर रही थी। And the death through the sin. और हम देखते पाप के वजह से मौत भी हमारे ऊपर कब्जा था। But we heard the good news. Hallelujah. Sunday. और पिछले संडे हमने अच्छी खुशखबरी सुनी है। What is that good news? और गुड न्यूज हमारे लिए क्या है? Our Lord is resurrected. हमारा यीशु मसीह जिंदा हुआ What है। is the meaning of resurrection? और फिर से जिंदा होने का मतलब क्या है? That means that death is defeated. इसका मतलब है कि मौत हार चुका है। The devil is destroyed. और शैतान को कुचल दिया गया है। Lift your hands and say, I declare. और मैं
कबूल करता हूँ In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से, Death is destroyed. और मौत हलाक हो चुका है, Devil is destroyed. शैतान हलाक हो चुका Sin है, is punished. और गुनाह को सजा दी गई And है, that Jesus is resurrected. और यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। So we are going to hallelujah study. We are going to start our life from the resurrection life of God. और हमारी जिंदगी वहां से शुरुआत होती है जब यीशु मसीह मुर्दों से जिंदा हुआ, Hallelujah. Your old address is erased. और आपका जो पुराना जो पता था, एड्रेस था, वो मिटा दिया Our गया है। old address was from Adam, that is erased now. और हमारा जो पुराना एड्रेस था आदम से आया था, वो मिटा दिया गया Now है। we are come from Jesus. और अभी हमारा जन्म, नया जन्म होता है यीशु मसीह के जरिए। Say, I am born again. मैं नए सिरे से जन्मा I हूँ, am born of God. मैं खुदा से जन्मा I हूँ, am born from above. मैं ऊपर से जन्मा I हूँ, am born through the Holy Spirit. मैं पवित्र आत्मा के जरिए, पाकरू के जरिए I मेरा want जन्म to हुआ see how है। many you are born through the Holy Spirit. कितने लोग पाकरू के जरिए उनका नया जन्म हुआ Those है? who are born again, lift your hands and say, Abba, Father, I thank you. और जिसका नया सिरे से जन्म हुआ है वो कह सकता है, अब्बा पिता, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। Amen. Those who don't know what is born again, hallelujah, it is very simple. If you repent and receive Jesus as your Lord and Savior, if you believe Jesus Christ is the Son of God, you become born again. और अगर जिसका नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने खाली जानना है कि वो गुनहगार थे, यीशु मसीह उनके गुनाह को ले लिया है, और जब वो यीशु मसीह को अपनाते हैं तो उनका नया जन्म होता है। So you are born again, that means you are born of God. जब आप नए सिरे से जन्म होते तो आपका नया जन्म परमेश्वर की ओर से होता है। Amen. आमीन। How many you agree you are born of God? और कितने यकीन करते हैं कि मेरा जन्म, नया जन्म हुआ है? Maybe you are not feeling it. हो सकता है आपको महसूस ना होता हो। As I told, our faith is not based on the feelings. और हमारा ईमान, हमारा विश्वास हमारे फीलिंग्स के ऊपर डिपेंड नहीं Our है। faith is on the rock called Jesus. और हमारा ईमान, हमारा विश्वास उस पत्थर के ऊपर है जो यीशु मसीह है। Amen. आमीन। Our strength is Jesus. और हमारा जो बल है वो यीशु मसीह है। Our righteousness is Jesus. और हमारी जो रास्तबाजी है, धार्मिकता है, वो यीशु मसीह है। Just check any mic is on. Please put up the mics, and I request the choir once you leave, put up all the mics, because small distraction is not good. Okay, all the mics are off. Okay, it's okay now. Okay, we can continue. So we are learning from Romans chapter 5 verse number 17, the second part. और रोमियो की 5:17 से हम सीख रहे हैं। It says, we have received abundance grace. और हमने बहुतायत का अनुग्रह और फजल को पाया है। Always we think we were sinners. हमेशा हमारे सोचों में यही था कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पापी हूँ। We have to remove that thinking now. अभी के बाद से जब आपने यीशु मसीह को कबूल किया है, तो वो सोच आपकी निकल जानी Once चाहिए। you are born again, एक बार आपने नए सिरे से आपका जन्म हो गया है, once you start to call the God that created Abba Father, जब आप खुदा को अपना पिता, अब्बा पिता करके जब आप पुकारते हो, once you know He has raised you and made you sit together with Him in the heavenly places, जब आपको पता चले कि आपको उसने उठाया है और आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में आपको बिठाया है, you should say, Lord, I thank you. तो आपने कहना है, खुदा मैं शुक्र करता I हूँ, received abundance grace. मैं बहुतायत का फजल को, अनुग्रह को पाता Everyone हूँ। lift your hands and say, Lord, I thank you. I received abundance grace. Keep on saying, I received abundance grace. जोर से हालेलुया, मुझे आवाज नहीं आ रहा है. मुझे बहुत फजल मिला है, I have बहुतायत received का, abundance grace. और मुझे बहुतायत का फजल अनुग्रह मिला What's है। that word in Urdu? Abundance grace? Kasras. And in Hindi? बहुतायत। Okay, thank God. Now you have this mindset because you are born again. आपकी ये सोच होनी चाहिए, जब आप नए सिरे से आपका जन्म हो गया The है abundance grace is deposited in your account. और बहुतायत का फजल और कसरत का अनुग्रह आपको डिपॉजिट किया है। Now you have to take advantage of this grace. अभी आपने इसका फायदा उठाना है, इस How you अनुग्रह can का। take advantage of this grace? और किस तरह से आप उसका फायदा ले सकते हैं, अनुग्रह का, फजल का। The Bible says, as you humble before God, और जब आप खुदा के सामने हलीम होते हैं, झुक जाते हैं, that God will pour out this grace over your life. और खुदावन अपना अनुग्रह और फजल और बहुतायत
से और आपकी जिंदगी में उंडेलेगा। Let you assume you are struggling to overcome some addictions. और हो सकता है कि आप अपने जिंदगी में कोई बातों से जूझ रहे हो, आप बाहर निकल नहीं पा रहे हो, कोई बुरी आदत या बुरी You हैबिट से, tried your best to come out from those addictions. और आपने बहुत कोशिश की कि वो बुराई से आप बाहर निकले। But now abundance grace is given to you. अभी आपने जानना चाहिए कि बहुतायत का अनुग्रह और कसरत का फजल आपको दिया गया Lift है। your hands and say, abundance grace is given to me. बहुतायत का अनुग्रह और कसरत का फजल मुझे दिया The गया है, abundance grace is in me. और वो फजल आज मेरे अंदर है। So what you should do now, अभी आपको क्या करना you है? should take the advantage of this abundance grace. और ये जो आपको अनुग्रह जो फजल मिला है, इसका आपने फायदा उठाना है। So instead of hallelujah telling that I am a sinner, I live in a sin, और इसके बजाय कि आप बोले कि मैं गुनहगार हूँ, मैं पाप में जी रहा हूँ, instead of rejoicing the sinful life, और इस आपने सिंफुल लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए, instead of that, you should say, I received the abundance grace. इसके बजाय आपने बोलना चाहिए कि मैं बहुतायत का कसरत का फजल अनुग्रह को पाया Through हूँ, this grace, I will live a victorious life. और इस फजल के जरिए, इस अनुग्रह के तरह मैं फतह की जिंदगी को So जीऊंगा। how to take the advantage of this grace? और किस तरह से आपने इस फजल का फायदा उठाना First, चाहिए? you have to humble before God. पहले बात अपने आप को अपने खुदा के सामने झुकाना चाहिए, And you have नम्रता said, होना thank you, चाहिए। Lord, for this abundance grace you have poured over my और आपने life. बोलना चाहिए, खुदावन मैं शुक्र करता हूँ कि ये कसरत का फजल अनुग्रह तूने मुझे दिया है, Through this grace. और इस अनुग्रह और इस फजल के द्वारा। जो भी बाजू में बैठा है, अगर आपने उसके साथ झगड़ा नहीं किया है, उसको मुंह बोल के देख के बोलो, हाले थ्रू दिस ग्रेस। और इस अनुग्रह और इस फजल के जरिए, हालेलुया, जोर से बोलो, थ्रू दिस ग्रेस, और इस फजल के जरिए, थ्रू दिस अबंडेंस और ग्रेस, कसरत के I live a victorious life. मैं फतह की जिंदगी को पा लेता हूँ, I live a victorious life. मैं फतह की जिंदगी को पा लेता हूँ। Why you have to say, क्यों आपने ये बोलना है? as you are speaking, और जब आप लगातार बोलते रहते हो, the doors going to open. आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे, As you are speaking, और जब आप बोलते जाओगे, hallelujah, the Spirit will manifest in your life. तो परमेश्वर का रूह आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। So what you want to see in your life? क्या आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो? Or you want to see sin in your life? क्या आप अपनी जिंदगी में गुनाह को देखना चाहते हो? Or you want to see sin in your life? क्या आप अपने जिंदगी में गुनाह को देखना चाहते Or हो? you want to see problems in your life? क्या अपने जिंदगी में आप प्रॉब्लम्स को देखना चाहते हो? Then don't change your language. तो अपनी जबान को बदलने की जरूरत नहीं है। You want to see victory in your life? अगर आपकी जिंदगी में फतह को और विक्ट्री को देखना चाहते Then you हो, have to change your language. तो आपकी जबान को आपको बदलना पड़ेगा, Hallelujah. You should release the word of God. और आपने परमेश्वर के कलाम को आपके मुंह से कबूल करते रहना You है। should tell, hallelujah, I have abundance grace. तो आपने इस तरह से बोलना, मेरे पास कसरत का फजल है, So I will refuse to live in sin. तो मैं इनकार करता हूँ, मैं गुनाह में नहीं The जीऊंगा, sin is my enemy. और जो गुनाह और पाप है वो मेरा दुश्मन है, I burnt out that sin. और उस गुनाह को, पाप को मैं जला देता हूँ। If you are struggling in the debts, अगर आप कर्जे में जूझ रहे हो, you should not agree or believe that God has created you live in debts. तो आपने इसके साथ सहमत नहीं होना चाहिए कि खुदा ने आपको कर्जे में रहने के लिए बुलाया है, Because Jesus said, I have come to give life in abundance. क्योंकि यीशु मसीह आया है और उसने कहा है, मैं आया हूँ जिंदगी देने के लिए और कसरत की To जिंदगी देने आया हूँ। experience that abundance life, अगर कसरत की जिंदगी आपकी जिंदगी में आपको जाहिर करना है, He has given you abundance grace. तो उसने आपको कसरत का फजल दिया हुआ है। I lift your hands, those who believe, and say, I have received abundance grace. और जो ईमान करते हैं वो कहे कि मैं कसरत का फजल को I पाता हूँ, received the abundance grace. मैं बहुतायत के अनुग्रह को पाता हूँ, Through this grace, और इस फजल और अनुग्रह के I जरिए will be promoted. और मैं तरक्की करूंगा, Through this grace, और इस फजल के जरिए I will live a set life. मैं एक पवित्र पाकीज़गी की जिंदगी जीऊंगा, Through this grace, और इस फजल के जरिए I will live a life well pleasing to और God. मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जो खुदा को पसंद आती है। Amen. आमीन। God knows with your strength you cannot live. खुदा जानता है कि आपके बलबूते से, आपके सामर्थ्य से आप जी नहीं सकते, Therefore He sent His Son Jesus. इसलिए उसने अपना बेटा यीशु मसीह आपके खातिर दिया है। You receive Jesus as a gift from heaven. आप जब यीशु मसीह को कबूल करते, एक तोहफा जो स्वर्ग से आया है, When you open that gift called Jesus, जब आप यीशु मसीह को अपनाते हो, उस गिफ्ट को अपना लेते हो, when you open that gift called Jesus,
Jesus, आप उस गिफ्ट को ओपन करते हो जो यीशु मसीह है, abundance grace will और flow. बहुत आय का फजल, बहुत आय का अनुग्रह आपकी जिंदगी में फ्लो होएगा। Amen. आमीन। So I encourage you, dream big. इसीलिए मैं आपको एनकरेज करता हूँ कि आप बड़े सपने देखें। Hallelujah. Nothing wrong dreaming big. अब बड़े सपने में देखने में कोई गलत बात नहीं है। अगर लगेगा तो लग गया, बड़ा लग जाएगा. आमीन। Hallelujah. Praise the Lord. So when you dream big, जब आप बड़ा ख्वाब देखते हो, hallelujah, अगर वो लग गया सोचो, हो गया सोचो, hallelujah, क्या होएगा? लग ही जाएगा. Hallelujah. So whenever, hallelujah, you are praying, pray for big things. और जब आप दुआ करते हो तो बड़ी बातों के लिए दुआ करो। Hallelujah. आमीन। If your salary is 2,000, अगर आपकी तनख्वाह खाली 2000 है, you pray, Lord, make my salary as a tithe. और ऐसे प्रार्थना करो कि खुदावन ये जो सैलरी है ये मेरे दाई हक की बन जाए। Amen. Hallelujah. इसका मतलब Amen. कम से कम. Hallelujah. The God can do it. और हमारा परमेश्वर करने की ताकत रखता Because है, abundance grace is given to you. क्योंकि उसने बहुत आय का और कसरत का फजल अनुग्रह आपके पर किया है। Suppose you are at the age of marriage now. और हो सकता है आप अभी शादी की उम्र में हो, And your friends already married and they're carrying two. और दो बच्चे. और जो आपके उम्र के लोगों की शादी होके उनके बच्चे भी हैं, But you are struggling to get a life partner. पर आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो एक अच्छा जीवन साथी मिलने के लिए। Change your thoughts. तो आपकी सोचों को आप बदलें You say yourself, और आप अपने आप से कहें, in Christ Jesus, यीशु मसीह में I received abundance grace. मैंने बहुत आय का फजल और अनुग्रह को Through पाया है, this grace, और इस फजल और अनुग्रह through के the द्वारा grace of God, और परमेश्वर के उस फजल my का, marriage will fix this year. और इस साल में ही मेरी शादी तय हो जाएगी। मेरी नहीं, जिसकी शादी नहीं हुई उसकी. अरे मेरी बीवी तो मेरे बाजू में है. Hallelujah. इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ते बोला. Hallelujah. So you have to use the grace to speak the result. इसीलिए आपने परमेश्वर के अनुग्रह को इस्तेमाल करना है रिजल्ट बोलने के लिए। Amen. आमीन। If you want to see result, अगर आप अपने जिंदगी में नतीजे देखना चाहते हो, if you want to see the solution, अपने जिंदगी में आप सॉल्यूशंस को देखना if चाहते you हो, want to see victory in your life, आप फतह को, विक्ट्री को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हो, before anyone sees in your life, और दूसरे आपकी जिंदगी में वो फतह और विक्ट्री देखने से पहले you should see, it should be in your heart. पहले आपने देखना है, ये आपके दिल में वो फतह और विक्ट्री होनी चाहिए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So as we are resurrected with Christ, और जिस तरह से हम यीशु मसीह के साथ जिलाए गए हैं, He has given us the abundance grace. और उसने बहुत आय का फजल हमें दे दिया है, And one more thing also given. और एक और चीज उसने हमें दी है। Please help me to identify that. और आप बताइए कि वो दूसरी कौन सी चीज है जो खुदा ने हमें ऑलरेडी दे दी है। नहीं, वो वचन में अनंत जीवन। अनंत जीवन कौन सा वचन पढ़ रहे तुम लोग? Yes, sir. अनंत Gift of जीवन. righteousness will reign in life. बस कोई वचन नहीं पढ़ा, महिला कम से 5 बार पढ़ाया. What is another thing is given in that scripture? धर्मी रूपी वरदान। खाली एक आदमी दो, बाकी का गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस। जोर से बोलो, प्यार से बोलो, क्या लिखा है? Hallelujah, it is written, God has given you the gift of righteousness. और रास्तबाजी का तोहफा आपको दिया Hallelujah. गया Lift है। your hands. I have received the gift of righteousness. मैं धार्मिकता का वरदान को पाता हूँ, I received the gift of grace. और मैं जिस तरह से फजल को पाता हूँ, पाता हूँ नहीं, पाया लिया हूँ. I received the abundance grace. मैं बहुत आय का फजल अनुग्रह पाया हूँ। I received the gift of righteousness. मैं धार्मिकता और रास्तबाजी का तोहफा को पाता हूँ, पाता हूँ. पाया है। Okay, so as you receive Jesus as your Lord and Savior, इस तरह से आपने यीशु मसीह को कबूल किया है अपना प्रभु करके, these two blessings already given to you. और ये दो ब्लेसिंग्स, ये दो बरकतें आपको दी गई है, So you can reign in your life. ताकि आप जिंदगी में फतह और राज कर सको, So you can live a victorious life. ताकि आप जयवंत की जिंदगी जी सको, To victory to manifest in your life, और आप वो जयवंत और वो विक्ट्री आपकी जिंदगी में अगर जाहिर होनी है तो you need abundance grace. पहली बात है कि आपको बहुत आय का अनुग्रह फजल चाहिए, And that grace is given to you.
और वो यीशु मसीह के जरिए वो फजल वो अनुग्रह आपको दे दिया है। And you need the gift of righteousness. आपको दूसरा तोहफा चाहिए रास्तबाजी का, धार्मिकता का, And both are deposited in you now. और वो धार्मिकता और रास्तबाजी आपको गिफ्ट के जैसे दे दिया है। Now you have to take the advantage of these gifts that God has given to you. और ये गिफ्ट्स का आपने फायदा उठाना है जो यीशु मसीह के जरिए आपको मिला है। For example, God has given me the good hands or fingers. और खुदा ने मुझे अच्छे हाथ दिए हैं, उंगलियां दी हैं। This is a gift from God. I didn't pay it anything. और ये मैंने कुछ इसको कीमत नहीं चुकाई है, मुझे खुदा ने दी है। I take advantage of these fingers. मैं इसका फायदा उठाता हूँ इस उंगलियों का। I use this hand to praise God. और मैं ये हाथों को उठाता हूँ खुदा की आराधना करने के I लिए। use this hand to clean my house. और यही हाथों को मैं इस्तेमाल करता हूँ साफ सफाई करने के लिए। Let me assume for 1.5 months, 45 days, I am not using this hand. और आप हो सकता है 45 डेज तक आपने अपने हाथों को इस्तेमाल नहीं किया। Assume I am not using it. I am keeping like this only. मैं उसको साइड में रखा हूँ, मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। कोई कुछ मेरा बीबी ने कुछ मुझे बोला, हालेलुया तू ज्यादा हाथ उठाता है, ओके हाथ से मैं हाथ ही नहीं उठाएगा, ऐसे रखा, ऐसे सोचिए, हालेलुया कितना दिन? 45 दिन। फिर उठा सकते हैं फिर से? बहुत मुश्किल है, वो फ्रीज हो जाता है। आप ट्राई करना चाहते हो? मत करो। हालेलुया। सेम वे इफ यू डोंट यूज द गिफ्ट दैट गॉड हैज गिवन टू यू, उसी तरह से जो परमेश्वर ने आपको जो गिफ्ट दिया है, अनुग्रह का, धार्मिकता का फजल जो दिया है, आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो you cannot live a victorious life. तो आप एक फतह की जिंदगी जी नहीं सकते You हो। are only dreaming the victorious life. आप खाली सपना देख सकते हो कि मैं एक फतह की जिंदगी जीऊंगा, You will dream one day I will live. और आप ऐसे सोचे कि एक दिन मैं फतह की जिंदगी जीऊंगा, And you will think स्वर्ग में जाने के बाद जिएगा। Hallelujah. That is not the will of God. The God's will today, right now, you should live a victorious life. और परमेश्वर की ये मर्जी है कि स्वर्ग जाने के बाद फतह की जिंदगी नहीं जीनी है, यहाँ पर अभी इसी वक्त फतह की, विक्ट्री की जिंदगी को जीना When है। Jesus died, He's not only died to take you to the heaven. यीशु मसीह सिर्फ इसीलिए नहीं मरा कि आपको स्वर्ग में लेकर जाने के लिए, When Jesus died, He brought heaven on earth. और जब यीशु मसीह मरा तो उसने स्वर्ग को पृथ्वी पर लेकर आया, And that heaven is in you now. और वही स्वर्ग आज आपके अंदर है। When Jesus lives in you, जब यीशु मसीह आपके अंदर जीता है His heaven is in तो you. वो स्वर्ग आपके अंदर है, His power is in you. वो सामर्थ, वो कुवत आपके अंदर है, Abundance grace is in और you. बहुत आय का फजल और अनुग्रह आपके अंदर है। So what you should do? अभी आपने क्या करना है? You should lift your hands and say, thank you, Lord. अपने हाथों को उठाकर सिर्फ शुक्रगुजारी करनी I है। believe I have abundance grace. मैं विश्वास ईमान करता हूँ कि मेरे पास बहुत आय का I फजल और believe अनुग्रह that you है। are giving me the gift of righteousness. मैं ईमान करता हूँ कि तूने मुझे रास्तबाजी धार्मिकता तोहफे में दी है। As you do this exercise every day, जब ये एक्सरसाइज को ये रोज रोज आप अपने मुंह से कबूल करोगे you will be delivered from sin conscious. तो आप जो गुनाह का जो एक सोच है उससे आप बाहर निकलोगे। You will never agree with the thoughts that puts you are a sinner. और वो उस बातों से कभी आप सहमत नहीं हो जाओगे कि मैं गुनहगार हूँ। You will tell, I was a sinner once in a life. तो आप इस तरह से आपकी Once बोली in a time, sorry. आपकी बोली इस तरह से होगी, एक समय पे मैं गुनहगार था I crucified the sinner on the cross. और उस गुनहगार को उस क्रूस पे मैंने लटका दिया है। Hallelujah. हालेलुया। No more I am a sinner. अभी के बाद से मैं गुनहगार और पापी नहीं I am हूँ। a son of God. अभी के बाद से मैं खुदा का बेटा I हूँ। am a son of मैं God. खुदा का बेटा हूँ, His abundance grace is given. क्योंकि उसने मुझे बहुत आय का अनुग्रह और फजल दिया He है। has given me the gift of righteousness. उसने धार्मिकता और रास्तबाजी मुझे तोहफे में He दी has है। washed me by the blood of Jesus. उसने मुझे अपने कीमती लहू से मुझे पवित्र और साफ किया So है। as you meditate who you are in Christ Jesus, जब आप ध्यान दोगे और मेडिटेट करोगे कि यीशु मसीह में मैं कौन हूँ, as you meditate who are you in Christ Jesus, जब आप ध्यान करोगे कि यीशु मसीह में मैं क्या है, मुझे खुदा ने बनाया है, as you meditate what God has given to you in Christ Jesus, और प्रभु यीशु मसीह में आपको खुदा ने क्या दिया है, hallelujah, as you meditate what you can do in or through Christ Jesus, और यीशु मसीह के जरिए आप क्या कर सकते हैं, as you meditate these things, और ये सारी बातों को आप जब लगातार सोचते रहेंगे, ध्यान करते you रहेंगे, will be filled with the Holy तो Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। You will be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर You will जाओगे। be filled with the fire of और God. पवित्र आत्मा का आग आपके अंदर आएगा, You will be filled with the spirit of victory. और आप फतह का जो रूह। रूह आपके ऊपर आएगी, You will be blessed with a successful life. और आप कामयाब
कामयाबी की जिंदगी को जियोगे। So how to take advantage of this abundance, grace and the gift of righteousness? और किस तरह से आप इसका फायदा उठा सकते हैं, जो बहुत आय की जिंदगी, बहुत आय का अनुग्रह, फजल और धार्मिकता जो आपको मिली है। Tell your friend, by shifting your thoughts to the finished work of Jesus. और मेरी सोचों को उस पर ध्यान लगाना जो यीशु मसीह ने उस क्रूस पर जो बातों को किया है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. How to experience this abundance grace? किस तरह से हम इस बहुत आय के फजल को, अनुग्रह को हमारी जिंदगी में महसूस करें। Instead of thinking I am a sinner, और ये बजाय कि हम ये सोचे कि मैं गुनहगार हूँ, पापी हूँ, I have a lot of curses from my और forefathers, बहुत सारे लालतें, बहुत सारे श्राप मेरे परदाताओं से मेरे पास आया है, and my neighbors are a big idol worshipper and they're doing witchcraft every day. और मेरे अब आजू बाजू वाले मूर्ति पूजा करते हैं और वो जादू टोना करते हैं मेरे अगेंस्ट। And last week मेरी ननद किधर भी गई थी, वो गई थी साड़ी लाने के लिए, हालेलुया, वो किधर गई थी, उसके बाद मेरा बच्चे बहुत बीमार में। Instead of thinking those negative wicked things, और वो गलत नेगेटिव सोचों को सोचने के बजाय, hallelujah, think what Christ has done on that cross तो उस बात पर ध्यान करें कि यीशु मसीह ने मेरे खातिर क्या किया है and what he has given to you in Christ Jesus. और यीशु मसीह के जरिए मुझे क्या चीजों को मिला है। Amen. आमीन। We are going to verse number 19 to make this statement more conform. और 19 को हम पढ़ेंगे। Hallelujah. The verse 19 says, "For by the one man's disobedience, the many were made sinners. So by one man's obedience, the many will be made righteous." क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। So last verse we will going to read together. By one man's obedience. आप कहेंगे कि एक मनुष्य के ब्रदर आप उर्दू में पढ़े। क्योंकि जिस तरह एक ही शख्स की नाफरमानी से बहुत से लोग गुनहगार ठहराए, उसी तरह एक ही फरमाबरदारी से बहुत से लोग रास्तबाज ठहराए गए। So hallelujah, we are going to repeat, by the one man's obedience. एक मनुष्य के ओबीडियंस से। Hallelujah, tell your friend, by one man's obedience. एक मनुष्य के ताबेदारी की वजह Hallelujah, से। shake him, hallelujah. उसको बोलो तू इधर एक ही घर में पहुंचा। हाँ, हालेलुया, नहीं तो बीबी के बारे में सोच रहा है। हालेलुया, shake him and tell, by one man's obedience. एक मनुष्य के फरमाबरदारी से Dash, dash, dash. क्या हुआ है? रास्तबाज ठहराए गए। उधर ऐसा नहीं लिखा है। रास्तबाज ठहराए गए। Because Jesus obeyed. क्योंकि यीशु मसीह ने हुक्म को माना। Tell your friend, because Jesus obeyed, यीशु मसीह ने हुक्म को माना, I made righteous. इसके वजह से मैं, Because Jesus obeyed. यीशु मसीह ने आज्ञा को मानी। Amen. आमीन। Adam disobeyed. हम देखते हैं कि आदम ने डिसोबे किया, Therefore all were made sinners. But that is now past tense. Hallelujah. Sin को सजा हुआ है. आमीन। But now, right now, because of the obedience of Jesus, you are made righteous. क्योंकि यीशु मसीह के फरमादारी से आप सब रास्तबाज हो गए हो। Lift your hands and say, I am made righteous. मुझे रास्तबाज बनाया Today है I am righteous in the eyes of God. और मैं आज रास्तबाज हूँ खुदा के नजर में। God has washed me and made me righteous. खुदा ने मुझे पाक साफ किया है और मुझे रास्तबाज ठहराया I है। am righteous in Christ Jesus. मैं रास्तबाज हूँ यीशु मसीह में। Amen. आमीन। So we are going to study today's word. और आज का कलाम अभी हम सुनेंगे। Hallelujah. Today's message अभी start हो रहा है. Hallelujah. But I will not take more than 10 minutes. मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। I titled my message और आज का मैसेज का टाइटल है, that Jesus is the bondage breaker. और यीशु मसीह सारे जुओं को तोड़ने वाला परमेश्वर है। Hallelujah. Hallelujah. When Jesus sees us, जब यीशु को देखता है, He want to, hallelujah, we all should experience that abundance grace. और परमेश्वर चाहता है, यीशु मसीह चाहता है कि हम बहुत आय का कसरत की जिंदगी को देखें। But when we see practically, जब हकीकत में हम देखते हैं, many times we struggle in many areas. और हकीकत में जब हम देखते हैं तो बहुत सारे एरिया में हम स्ट्रगल कर रहे हैं। For example, we struggle in finances. और कभी-कभी हम देखते हैं कि हम फाइनेंसेस के एरिया में स्ट्रगल करते हैं। Many people struggle in finance because they don't know how to sow and come out from
from that bondage. और बहुत लोग इसलिए जूझते हैं क्योंकि वो नहीं जानते कि किस तरह से बोते हैं और कि फिर हम कैसे बोने का करके उन लोगों को मालूम नहीं है. So they are not seeing the abundance life in their life. तो फिर इसकी वजह से वो फाइनेंस के एरिया में ब्रेक थ्रू नहीं देख सकते. But some people have a bondage of sickness. और बहुत लोगों को ऐसा एक बॉन्डेज रहता है, जुआ रहता है बीमारी का. Some people have a bondage of debts. और बहुत सारे बॉन्डेजेस में एक जुए में रहते हैं जो कर्जे के. Some people have a bondage of fear, addiction, guilt. और बहुत लोगों को इस तरह के जुए रहते हैं जो डर का है, जो और गुनाह का और अलग अलग बुरी हैबिट्स का. The bondage is anything that keeps you away from the freedom of God. और जुआ वो चीज है जो आपको खुदा की हुजूरी से दूर रखता है. You know the will of God. आप खुदा की मर्जी को जानते हो You know God's will that I should be healed. और आप जानते हो कि खुदा की मर्जी है कि मैं चंगाई को पाऊं. You know God's will that my bank account always full. आप जानते हो कि खुदा की मर्जी है कि मैं हमेशा मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रहे. You know God's will that husband and wife should live in faithful. और आप जानते हो कि परमेश्वर की मर्जी है कि मियाँ बीवी एक वफादार और फेथफुल एक दूसरे को रहे. You know God's will that you should be fruitful. और आप जानते हैं कि खुदा की मर्जी है कि आप फलदायक बने. But in the reality, you are not able to see that. पर हकीकत में हम ये बातों को देखते नहीं हैं. You want to know why? आप जानते हो क्यों? You are not taken the advantage, the abundance, grace that God has given to you. तो आपने उस चीज का फायदा नहीं उठाया जो परमेश्वर ने दिया है, बहुत आय का कसरत का फजल अनुग्रह जो आपको दिया है. Instead of fighting against those bondages, और उस जुओं के पीछे दौड़ने instead of attacking the attacker, और वो जो आपको अटैक करता है उसको अटैक करने के बजाय you are sleeping, और आप सो रहे थे you are lazy. और आप आलसी थे. So how you expect to experience victory in your life? तो कैसे आपकी जिंदगी में फतह होगी जब आपने लड़ाई करना चाहिए था उस बात के लिए आप तभी सो रहे थे. I read many times this holy Bible. और बहुत बार मैंने खुदा का कलाम को पढ़ा है I heard many messages. और मैंने बहुत सारे मैसेजेस को सुना है. मुझे अभी तक ऐसा नहीं मिला कि the abundance life will come to a lazy person. और इधर बाइबल में किधर भी नहीं लिखा है कि बहुत आए कि कसरत की जिंदगी एक आलसी मनुष्य के पास आएगी. अगर आपको किधर भी रेफरेंस मिला प्लीज कृपया करके मेरा व्हाट्सएप में भेजना, मैं स्टडी करेगा. हालेलुया. God has given you abundance grace. और खुदा ने आपको बहुत कसरत का फजल अनुग्रह दिया है. God has given you the gift of righteousness. और खुदा ने आपको तोहफे में रास्तबाजी दी है. God has made you righteous. और खुदा ने आपको रास्तबाज धार्मिक ठहराया है. These all things are deposited in your spirit. और ये सब आपके रूह के अंदर है. All these things are deposited in new man. Hallelujah. That God has created. और जो आप जो एक नया मनुष्य है उसके अंदर ये सारी चीजें डिपॉजिट की गई है. But when people are lazy and busy with the worldly things, और जब इंसान आलसी हो जाता है और दुनिया की चीजों में वो बिजी हो जाता they है are trapped in the bondage. तो वो जुआ उनके ऊपर वो आ जाता है. It is not God's will that you should live in the bondage. और ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप जुए में रहे. But good news, Jesus is the bondage breaker. और हम जानते हैं कि आपके लिए अच्छी खबर है कि यीशु मसीह ये सारे जुओं को तोड़ने वाला Tell खुदा your है. friend, my Lord will break every bondage of your life. और मेरा खुदा आपकी जिंदगी के ऊपर जितने जुए उसको तोड़ देगा. Everything that holding you back, और जो चीजें आपको खुदा से दूर रखती है it should be broken today in the name of वो Jesus. सारी जुए आज टूट जाती है यीशु मसीह के नाम से. I come from the presence of God. और मैं खुदा की हुजूरी से आ रहा हूँ. I come from the prayer altar. और मैं खुद उस प्रार्थना के मजबे से आ रहा I हूँ. brought that fire which will destroy every bondage from your life. और मैं उस आग को लेकर आया हूँ कि ताकि आपके सारे जुए आज टूट जाए. Enough is enough. बहुत हो चुका है. You have to move forward. आपने आगे के तरफ बढ़ना You है have to take advantage of this grace. और ये फजल का आपने फायदा You उठाना have है. to take advantage of this gift of righteousness. और ये धार्मिकता है जो रास्तबाजी जो आपको तोहफे में मिली उसका फायदा आपने उठाना है. Ask your friend what I should do. और आपने दोस्त से पूछिए कि मैंने क्या करना है. क्या करना है? क्या करना है आपको? सफेद कपड़े डाल के आना, मुझे उड़ाना, क्या बोलते इसको? मुझ को उड़ाना, मुस्ताज को उड़ाना. क्या करना? Yeah, how to take that advantage? Okay, हाँ? Okay, ईमान रखना. बस ईमान रखा हो गया, काम खत्म. Praise God. Thank you. क्या करना? हालेलुया. अभी हम लोग सुना. क्या करना?
ओके, वचन में बढ़ना है। और कुछ? हमें फाइट हाँ? करना है। Hallelujah. Once you receive the knowledge, जब आपको समझ आ जाती है, once you receive the understanding, जब आपको इसके समझ आ गई है, hallelujah, once you see you are seated with God in the heavenly places, जब अपने आप को देखते हो कि आप यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए once हो, you see, hallelujah, you have authority to trample upon serpents and scorpions, जब आपको पता चलता है कि खुदा ने आपको इख्तियार दिया है, अधिकार दिया है सांपों को और बिच्छों को रौंदने का, once you see it is God's will that I should be the lender, और जब आपको पता चलेगा कि खुदा की मर्जी है कि मैं देने वाला बनूं, once you know, according to 1 Corinthians 6:17, but ye who join the Lord become one spirit with him. और जो यीशु मसीह के साथ एक हो जाता है वो एक रूह बन जाता है। Hallelujah. Once you see this scripture, और ये सारे कलाम को जब आप देखोगे, I become one with Jesus. मैं यीशु मसीह के साथ एक हो जाता हूँ, Therefore, I am one spirit with Jesus. इसलिए मैं यीशु मसीह के साथ एक रूह हो गया So when हूँ। you see these things, जब आप इस बातों को देखोगे, you have to declare. आपने डिक्लेयर करना है, कबूल करना Tell है, your friend, you have to declare. आपने कबूल करना है, You have to roar. आपने शेर के समान गरजना है। Hallelujah. हालेलुया। So when you speak this truth, जब आप इस सच्चाई को बोलोगे when you declare these words और इस कलाम को आप अपने मुंह से कबूल करके घोषित करोगे with revelation, और मुकाशवे के साथ, समझ के साथ, these words will enlarge your territory. तो यही कलाम है जो आपके हदों को बढ़ा देगा। These words will bring finances in your bank और account. यही कलाम है जो आपके बैंक अकाउंट में फाइनेंसेस को लेकर आएगा। These words will elevate you, your spiritual and material life. और यही कलाम है जो आपको रूह में बढ़ने का और बाकी सारी एरियो में आपको तरक्की देगा। The Bible says, one who honors my word, और परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे कलाम को, मेरे वचन को इज्जत देता he है, honors me. वो मुझे इज्जत देता है। Tell your friend, my Jesus is the bondage breaker. मेरा यीशु मसीह जुओं को तोड़ने वाला खुदा है। उसको हिला के बोलो, my Lord is the bondage breaker. मेरा खुदा जुओं को तोड़ने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। कैसे तोड़ेगा? आज रात वो आएगा यीशु आपके पास। बिटिया, थैंक यू, बहुत मेहरबानी, आज तू चर्च में गया था। हाँ, तेरा खूबसूरत चेहरा पास्टर को दिखा के आया, मैं बहुत खुश हूं। हाँ, टच, हाँ, ऐसे बॉन्डेज ब्रेक होएगा। वो खानिया है। बॉन्डेज ब्रेक होना चाहिए तो यू हैव टू रिसीव द वर्ड इन योर स्पिरिट। अगर आपको जुओं को तोड़ना है तो कलाम को अपने अंदर लेना You है। want to experience a permanent freedom in your spirit. अगर आपको हमेशा एक छुटकारा चाहिए आपकी रूह के अंदर, Hallelujah. You have to receive the word. तो आपने कलाम को रिसीव करना है। As you allow the word in you, जब आप कलाम को अलाउ करेंगे आपकी जिंदगी में काम करने के लिए, this word will transform your life. यही कलाम है जो आपकी जिंदगी को बदल देगा। Therefore, the church gives the more important for the word of God. इसीलिए ये कलीसिया परमेश्वर के कलाम को बहुत ज्यादा इज्जत और अहमियत देती है। Therefore, every Saturday 9 to 10 we have a Bible study. इसीलिए हर सैटरडे को बाइबल स्टडी होती है। If you really love yourself, not love the Lord, अगर आप सचमुच में अपने आप से प्यार करते हो, then feed yourself with the word of तो God. अपने रूह को खुराक खिलाओ। Hallelujah. If you love yourself अगर आप अपने आप से प्यार करते हो, and you want to see your soul should be saved and be in the heaven, आप चाहते हो कि आपकी रूह बच जाए और आप स्वर्ग में दिखे जाए, feed the word of God to your spirit. तो अपने रूह को परमेश्वर के कलाम का खुराक खिलाओ। Amen. आमीन। As you receive the word, जब आप खुदा के कलाम को रिसीव करते हैं, God's light will enter in your heart. तो परमेश्वर का वो उजाला, वो रोशनी आपके अंदर आएगी It will change your thinkings. और आपके सोचों को वो बदल It देगी will help you to think like God is thinking. और आपकी सोच यीशु मसीह की सोच बन जाएगी। जैसे खुदा आपके बारे में सोचता है, वैसे सोचने के लिए खुदा का कलाम आपको सहायता करेगी। आमीन। Hallelujah. You want to experience the power of God in your life? अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का जो सामर्थ्य, वो कुवत आपकी जिंदगी में जाहिर हो, दिखाई दे, Feed your spirit with the word of तो God. अपने रूह को खुदा के कलाम से खिलाओ। And whenever you are free, और जब भी आप फ्री है, keep on declare the word of God, who you are in Christ तो Jesus. आप हमेशा ये कबूल करते रहो कि आप यीशु मसीह में
कौन सा जगह आपको दिया गया है। Hallelujah. Always say, I am the light of this world. और हमेशा ये कबूल करते रहे कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ। I am seated with God. मैं यीशु मसीह के साथ रह गया My हूँ। sins are forgiven. मेरे सारे गुनाह माफ हो चुके हैं। My old man is crucified on the और cross. मेरा पुराना मनुष्य है वो क्रूस पर चढ़ाया गया No है। more I live, Christ lives in me. अभी मैं नहीं जीता हूँ, यीशु मसीह मुझ में जीता It है। is written, और ये लिखा गया he है। who is joined to the Lord, और जो यीशु मसीह के साथ एक हो गया he है become one spirit with him. तो वो उसके साथ एक रूह बन जाता I है। joined with the Lord. मैं यीशु मसीह के साथ एक हो I गया am हूँ। one spirit with मैं Jesus. यीशु मसीह के साथ एक I रूह have हूँ। the same spirit of Jesus in me. और यीशु मसीह के पास जो रूह है वही रूह मेरे अंदर है। I am filled with the spirit of Jesus. और मैं यीशु मसीह की रूह से भर गया हूँ। So as you declare, और जब आप बार बार इस बातों को कबूल करोगे, as a man of God, I prophesy over your life, और प्रभु का दास होते हुए आपकी जिंदगी में नबवत करता you हूँ, will see a change. आप अपनी जिंदगी में बदलावट को You will देखोगे। see a change. आपकी जिंदगी में बदलावट को Your देखोगे। laziness will go. आपकी जो आलसीपन है वो निकल Your जाएगा। sickness will go. आपकी बीमारियां निकल जाएगी। The God's grace will overtake over your life. और परमेश्वर का अनुग्रह और आपकी जिंदगी में भरपूरी से आएगा। That Jesus not only changes our situations, परमेश्वर सिर्फ हमारी परिस्थितियों के, हमारे हालात को सिर्फ बदलता नहीं है, He helps us to change our behavior. वो हमें हेल्प करता है कि हमारे जो बिहेवियर है, हम जिस तरह से चाल चलन करते हैं उसको वो बदलता By है। transforming our heart. वो पहले हमारे दिल को बदल देता So है। allow the word to operate your heart. तो आप अलाउ करें कि परमेश्वर का कलाम आपके दिल में काम करे। In Jesus' mighty name. यीशु मसीह के पवित्र नाम Those में।